Hello guys, I am Saimar Fan. In this video, I'm gonna tell you my New Year resolutions, what I have did in this year, and also what I will do in this year. I also, first of all, I manifest to prepare for my NEET exam that is happening on 3 May 2026. So I'm right now currently preparing for it only. That's why I'm so inconsistent on YouTube and as well as in every in this world even. You can see my diary. This is the diary I have made a wish list, and this was my vision board of 2025. As you can see, it's written YouTube also and every other stuff. And this is the diary I have written if you want to learn from me, so you can learn these things. So you can see this diary as well as this diary in my different video. I'm not gonna say everything what I have written and what I meant of everything in this video, but I just wanna let you see what was my vision board. And this is the lecture of Ayut sir I was currently studying of. This is my study table, and winter is here, guys. I also love the ear puff, it's so good. My jacket, but and yeah, guys, as I have turned 20 this year, I will be turning 21 in 2026. So yeah, I should be like थोड़ा बहुत mature होना चाहिए. So yeah, I would be mature enough. I would be mature, and I will be college. I will taking in college. Like I am not taking drop like अरे हम बोल क्यों नहीं पा रहे यार, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स चली गई हैं. इतने दिनों से मैंने बोला ही नहीं किसी से. सो या गाइस, आई लिव इन माय रूम, आई डोंट हैव एनी फ्रेंड्स. या आई हैव इट्स अ पर्टिकुलर टॉपिक, उसके ऊपर पूरा बन सकता है. अगर आपको चाहिए तो आप बताइएगा दैट आई शुड मेक अ वीडियो ऑन द टाइटल बेस्ट फ्रेंड्स और नॉट, बिकॉज आई डोंट हैव एनी फ्रेंड्स, आई डोंट हैव एनीबडी, आई जस्ट लिव इन माय रूम. So I don't have any communication skills, also not developing nowadays. But in 2026 I would develop communication skills. I will go to the college, I will clear this exam and take the college that will जो मिलेगा मुझको. Yeah guys, so there are so many pending videos also that I should work on and make the complete edit of those videos, and I should upload, but I'm not doing that stuff because I'm lazy. I'm lazy to do these things, and I also don't feel to record videos because my hairs are not supporting me, my face, the situation, and mummy papa bahar gaye hain. That's why I'm recording this video to show you guys. So because I don't feel कि हम record करें videos को, क्योंकि एक दिल होता है ना कि like दिल से record करें videos, ज़बरदस्ती थोड़ी ना. तो मुझको अभी feel हुआ, and situation अच्छी होनी चाहिए जो होती नहीं है, तो अब मुझको मिली तो मैंने record करा videos guys. And yes guys, merry Christmas, belated, and happy new year. If you should decide to grow a YouTube channel, you should be consistent. So that's why I used to post the unlisted videos that I shoot a months ago, like 6 month पहले वाली समर वाली वीडियो अब जाके मैंने दिसंबर के महीने में अपलोड करी है, जब बारिश हो रही थी, जब धूप हो रही थी छत पे, like literally guys. And also I do have a FOMO a lot कि ये चल रहा है लोगों की ज़िंदगी में, and इंस्टा पे क्या क्या हो रहा है, and I am so far away from that stuff, the cafe, the hangout, the every party and other stuff. I just used to see from my eyes and do nothing, just to study on the table. So yeah guys, I do have a FOMO a lot, but I will remove this FOMO in my college years. And this is not the thing. I would quit studying. I would keep studying harder and harder every year, and I would crack this exam. The manifestation of this 2026 is to study a lot, gain knowledge a lot, be humble, be kind, make your parents proud, and crack this exam. And content creation, do well in content creation. If you grab a thing, then you should do until the end. पूरी मेहनत लगा देनी चाहिए. सो या वी हैव टू गिव आवर 100% वॉट एवर स्ट्रीम वी हैव चूजन. कि अब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो जो ऑप्शन मिला है उसमें ही 100% लगाएं. सो या गाइज, आई हैव टू डू दिस थिंग्स, एंड बस यही है. एंड ऑल्सो गाइज, प्लीज इग्नोर दैट डस्टबिन. एंड ऑल्सो आई हैव डिसाइडेड टू मेक अ मीम वीडियो ऑल्सो, कि मीम की वीडियोस बना सकते हैं कि 2025 में कितने मीम्स हुए हैं, बट आई जस्ट क्विट डिसाइडिंग दोस, मतलब मैंने छोड़ दिया, मतलब नहीं बनाएंगे. ऑल्सो गाइज, आई वुड लव टू से टू यू दैट दिस इज माई फेवरेट जैकेट, यू कैन सी इन दिस वीडियो. एंड मेरी मम्मी ने ब्रेड्स बांधे हैं मेरे बालों में, जो आप देख सकते हैं. एंड ऑन माई टॉप इट्स रिटन टॉमी. So yeah guys, and also guys, this is my teddy bear. As you can see, it is always sitting, lating, and सोता रहता है हमेशा, ही हमेशा सोता ही रहता है guys. And क्या बोले हम उसके बारे में, but 2026 के बारे में एक चीज़ बोलना चाहते हैं कि प्लीज़ अच्छा गुजरना. And I will post this video on 1st January 2026. मेरी मम्मी का बर्थडे भी होता है guys, तो चलिए उनका प्रमोशन कर देते हैं. मेरी मम्मी का चैनल ये है गाइस, उनको भी सब्सक्राइब कर लीजिए. उनका भी 1st जनवरी को ही बर्थडे होता है, पर वो कुकिंग वीडियोस डालती हैं. तो अगर आपको खाना बनाना पसंद है, मुझको तो नहीं, तो आप कर सकते हैं सब्सक्राइब. तो गाइस, मुझको क्या क्या चीज़ें नहीं पसंद है, आई वुड टेल यू. आई हेट कुकिंग, एंड मेरी छोटी बहनों को बहुत ज़्यादा पसंद है. दे लव टू मेक न्यू रेसिपीज़, एंड मुझको खाने को मिलता है, मेरा तो फ़ायदा हो रहा है. बट या गाइस, देखिए गाइस, खुशी होती है सब लोगों की. अब मुझको नहीं पसंद है तो इंटेंशनली नहीं पसंद है, और वो सबको बिना फोर्सफुली वो सब कुछ चीज़ें करती हैं. कोई कहता भी नहीं है, फिर भी वो सब अच्छी अच्छी डिशेज बना लेती हैं. तो इट्स डिपेंड ऑन पर्सनैलिटी टू पर्सनैलिटी कि किसको क्या चीज़ें पसंद है और किसको क्या चीज़ें नहीं. आप फोर्स नहीं कर सकते
सकते हैं कि भाई ज़बरदस्ती पसंद करो, ज़बरदस्ती पसंद करो, हो ही नहीं पाएगा वो तो फिर। तो यही चीज़ होती है गाइस। सो आई हेट कुकिंग, आई हेट मेनी अदर स्टफ्स ऑल्सो, बट या मेरा चैनल पॉजिटिविटी पे है तो पॉजिटिविटी ही स्प्रेड करनी है मुझको। अभी तो गाइस 14 दिसंबर को मायसा का बर्थडे गुजरा था, फिर 11 दिसंबर को मेरे पापा का एंड 1 जनवरी को मेरी मम्मी का, और मेरा 14 सितंबर मेरी बहन रीसा का, 17 सितंबर मम्मी का ही बचा है जिस दिन ये वीडियो जाएगी। एंड गाइस या गाइस, एंड ऑल्सो गाइस आई लव टू मेक वीडियोज़, आई लव टू स्टडी। सच नहीं, सच मतलब हाँ सच है, झूठ नहीं है। हाँ, एंड ऑल्सो आई डोंट यूज़ इंस्टाग्राम फॉर मी इफ़ यू वांट टू टेक एनी नॉलेज। आई लव टू ईट, लाइक आई जस्ट लव टू ईट। अगर दो चीज़ें मुझको सबसे ज़्यादा पसंद है, आई कांट कॉम्प्रोमाइज, इज लाइक अच्छे कपड़े और अच्छा खाना। लाइक खाना जो है जैसे लाइक आई विल टेल यू गाइस, ये कुलचा निहारी इज ओरिजिन फ्रॉम लखनऊ। इवन दिल्ली और लखनऊ में कंट्रोवर्सी होती है, बट नहीं, लखनऊ में ही रियल कुलचा निहारी मिलती है। टुंडे कबाबी, रहीम एंड इदरीस बिरयानी एंड मुबीन कुलचा निहारी। तो ये फेमस चीज़ लखनऊ वाले लोग तो भूल ही नहीं सकते हैं, वो कंपलसरी ही गए होंगे अगर वो नॉनवेज वाले होंगे। तो कुलचा निहारी इज़ माई फर्स्ट फेवरेट डिश, एंड सेकंड इज़ बिरयानी, एंड थर्ड इज़ कबाब पराठे टुंडे के। तो गाइस या दिस इज़ द थिंग आई वांट टू टेल यू कि इस खाने के बगैर हम नहीं रह सकते। अब किसी और स्टेट में मुझको अगर फेंक दिया, बाहर कह दिया जाए जाओ, गाइस आई डोंट नो कि हम कैसे रहेंगे। आई लिटरली डोंट नो कि हम कैसे रहेंगे इस खाने के बगैर। सिर्फ यार ये चीज़ें मिल जाए ना मुझको, और कुछ नहीं चाहिए मुझको। लखनऊ का ही खाने ऐसी चीज़ें होती हैं, लाइक कुछ लोग कहते हैं ये क्या नाम है इसका, मतलब लोगों को पता तक कि नहीं है कि ये खाना क्या भी एग्जिस्ट करता है। तो मुझको तो बहुत डर लगता है यार जब कोई ऐसा रिएक्ट करता है कि इसको क्या कहते हैं, लाइक लिटरली इसको क्या कहते हैं। लखनऊ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ और सिर्फ लखनऊ में ही मिलती हैं और कहीं और नहीं। तो आई जस्ट फील सैड अबाउट दिस कि ऑल्सो गाइस लखनऊ वाले लोग भी जब फ्यूचर में चल के अगर बाहर रहने को मिलेगा तो उस खाने के बगैर कैसे रहेंगे, ये भी सोचते हैं। मैं खाना, अच्छा खाना और अच्छे कपड़े, तो लाइक कपड़े, हम उस कपड़े के बगैर नहीं रह सकते यार, मुझको अच्छे कपड़े चाहिए। एंड ऑल्सो मेरी जो दोनों छोटी बहनें हैं उनको सूट बहुत पसंद है और मुझको बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो या गाइस ये भी खुद की पर्सनैलिटी होती है और खुद की पसंद होती है कि मुझको ये कपड़े बिल्कुल ही हेट कर लगते हैं, नहीं पसंद है, मतलब बिल्कुल भी नहीं। सूट सलवार ये सब नहीं गाइस, मेरा जो टॉप जितना कवर करता है ना उतना सूट भी कवर नहीं कर पाता कभी कभी तो इन लोगों का। पर मुझको हुडी, जैकेट, स्वेटर, नहीं सूट नहीं, प्लीज़ भाई कृपया करके सूट दूर रखिए, मुझको नहीं पसंद है तो भाई नहीं पसंद है। अब सबकी अलग अलग पसंद होती है, एंड यू शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट अदर्स ओपिनियन टू, दैट इज रिटन इन माय डायरी इवन। सो या आई ऑल्सो लव टू रीड एंड राइट डायरीज, एंड आई लव टू रीड बुक्स ओनली। आई हैव अ कॉमिक बुक, आई विल शो यू। मैंने शायद अपनी पुरानी वीडियोज़ में कॉमिक बुक भी दिखाई है आप लोगों को। एंड या गाइस आई वुड लव टू मेक कंटेंट। द थिंग्स आई हेट आई हैव जस्ट टोल्ड यू कि जो भी चीज़ें मुझको नहीं पसंद है तो मैंने आपको बता दी। एंड या गाइस जो नेचर मेरा दूसरों की पर्सनालिटी अलग बनाता है वो सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है। एंड हर समय फ़ोन को खोल लेना, वीडियो बनाने लगना, ये भी चीज़ सिर्फ खूबी मेरे ही अंदर पाई जाती है, मेरे फैमिली में। बाकी मैंने किसी से अडेप्ट नहीं करा है। बहुत सारी चीज़ें हेरिटेज होती हैं जो आप दूसरों से, नेचर से सुन के करते हैं, बट नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये खुद की ही पर्सनालिटी खुद डेवलप होती है। लोगों के फादर बहुत ज़्यादा रिच होते हैं, अच्छे होते हैं, मैनरफुल होते हैं, पर बच्चे नहीं हो पाते हैं। तो इसीलिए खुद की पर्सनालिटी ना लोग 90% खुद ही डेवलप करते हैं, 10% केम फ्रॉम द पेरेंट्स। एंड गाइस जब भाई बहन भी सेम नेचर के नहीं रह सकते हैं तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि सारे लोग सेम नेचर के रहें, क्योंकि जब अपने घर में ही लोगों की पर्सनालिटी कितनी ज़्यादा वैरी करती है। खाने के भी मामले में मेरी बहन वेजिटेरियन ही हो जाती है कभी कभी पूरे समय, तो अब हम क्या बोले इस मैटर में, मुझको तो जो मिल जाए भाई हम वो खा लेंगे, जो भी चीज़ वो तो उसी एनवायरमेंट में स्विच हो जाएंगे। कुछ लोगों के नखरे होते हैं, कुछ चीज़ों में मेरे नखरे नहीं भी होते हैं। तो पर्सनालिटी टू पर्सनालिटी डेवलप करता है। एंड ऑल्सो ये सारी जो स्टीरियोटाइप और पेट्रियार्की, मिसोजिनिस्टी, सारी चीज़ें कि हम अगेंस्ट हैं गाइस, मिसोजिनिस्ट के, अनइक्वालिटी के, डिस्क्रिमिनेशन के। दैट्स वाई मेरे चैनल का बायो है वन स्प्रेड पॉजिटिविटी इन दिस वर्ल्ड। और ये सारी चीज़ें बहुत सारे लोगों को अच्छी नहीं भी लगेंगी जो भी हम बोल रहे हैं, क्योंकि दिस ऑल्सो क्रिएट मेनी अदर कॉन्ट्रोवर्सीज, बट आई एम रेडी टू फेस देम बिकॉज आई एम नॉट स्पीकिंग लाई, आई एम स्पीकिंग द ट्रूथ। आई सपोर्ट ध्रुव राठी बिकॉज ऑफ हिज एजुकेशनल कंटेंट जो बहुत सही होते हैं, एंड द फैक्ट दैट आर एक्चुअली ट्रू, नॉट 100%, बिकॉज 100% कोई भी इंसान सही नहीं होता है। बट या रिलीजन पे लड़ने की बजाय ना हम सबको खुद पे फोकस करना चाहिए, तो इंडिया आगे बढ़ पाएगा, वैसे नहीं बढ़ पाएगा। बिकॉज जिनके पास रिलीजन भी नहीं होता वो भी अच्छे कर लेते हैं, वो देश, वो कंट्रीज एंड एवरी थिंग। एंड बिकॉज ऑफ द एजुकेशनल वी कैन चेंज द इंडिया, एंड ऑल्सो बाय सिविक सेंस द नेचर एंड द पर्सनैलिटी ऑफ द पीपल कैन चेंज इंडिया, नॉट रिलीजन। सो या गाइस रिलीजन एक पार्ट होता है, उसमें फेथ रखने का, ह्यूमैनिटी रखने का, हम्बल रखने का, काइंड होने का, बट वो चीज़ों को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ना गीता में कहीं कुछ लिखा है बुरा, ना कुरान में कहीं कुछ लिखा है। दोनों सारे रिलीजन अपने में बहुत अच्छे होते हैं, वो सब लोग रिस्पेक्ट करना सिखाते हैं, लव करना सिखाते हैं। ये पढ़ा भाई, ये पढ़ा तुमने, लव रिस्पेक्ट केयर, ये कहीं पढ़ा आप लोगों ने? नहीं। पर नहीं गाइस, जब लव केयर रिस्पेक्ट ऑर्डर, ये सारी चीज़ें जो अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी रहती हैं रिलीजियस टेक्स्ट में, अगर आप कोई भी रिलीजन के हो, कोई दूसरे रिलीजन की होली बुक उठा लो तो उसमें भी आपको अच्छी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी, कुछ बुरी नहीं मिल जाएंगी। कोई ये रिलीजन ये नहीं सिखाता कि हेट करो, डिस्क्रिमिनेशन करो, कोई भी नहीं सिखाता है। सो अगर आप पॉजिटिव रहोगे ना खुद से, तो अपने आप ही आपको अच्छे लोग मिलते जाएंगे। एंड इफ़ यू बी इन द सर्किल ऑफ एजुकेटेड पीपल द कन्वर्सेशन विल बी डिफरेंट। गवारों के बीच में रहोगे तो वैसी ही बातें और लड़ाई झगड़ा एंड कंट्रोवर्सी, न्यूज़ तो देखना ही नहीं चाहिए जो हम भाई आपको बता रहे हैं। अब ये अलग बात है कि मेरे घर में खुद न्यूज़ें देखी जाती हैं तो वो क्या मुझको नहीं पसंद?
हाँ नहीं पसंद मुझको, हम आपको बता रहे हैं बिकॉज दिस इज़ माई ओपिनियन, दिस इज़ माई यूट्यूब चैनल, दिस इज़ माई ऑडियंस। यहाँ पे अगर 0 व्यूज़ भी आए ना तो भी मुझको चलेगा बिकॉज दिस इज़ माई यूट्यूब चैनल, दिस इज़ माई वॉइस। सुन रहा है कोई या नहीं सुन रहा है, मेरे पास ये वीडियो रहेगी ना अगले साल भी। वॉट इट मैटर्स, एंड पॉजिटिव तो हम है ही, बट ये सोचते हैं कि चलो पिछली वीडियो पे 50 व्यू आ जाएंगे तो दूसरी अपलोड कर देंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, ज़्यादा हम नेगेटिव लेते हैं। एंड ऑल्सो गाइज एक और चीज़ है कि अगर आपको बेस्ट फ्रेंड पे वीडियो चाहिए तो आप मुझको बताइएगा, हम वो वीडियोस भी डाल देंगे, वो वीडियो डाल देंगे बिकॉज आई रियली वांटेड टू एक्सपोज द पर्सन इन माय माइंड रोमिंग हियर एंड देयर। सो या गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपको अच्छी नहीं लगी हो तो कमेंट में फीडबैक देके जाइएगा कि क्या अच्छा नहीं लगा, फिर अच्छा क्या लगेगा आपको बता दीजिए वो। गाइस प्लीज़ हंसिएगा मत, एक चीज़ बतानी है मुझको कि ये सारी जो 3 कैंपा की बॉटल है ना, इनकी एक्सपायरी डेट मैंने चेक कर ली और ये हम तब पियेंगे जब मेरा नीट एग्जाम अच्छा जाएगा। तो गाइस यही मैंने सोचा है, ये सब सील्ड पैक्ड एंड बंद है, तो हम इसको तभी पियेंगे जब मेरा एग्जाम अच्छा जाएगा नीट का। और इसकी एक्सपायरी डेट देख सकते हैं आप कि एक्सपायरी डेट कब की है, जून जुलाई। सो जुलाई 6 को ये एक्सपायर होंगे और मेरा नीट का एग्जाम होगा 3 मई 2026। सो या गाइस, और ये हम अब से हर वीडियोस में दिखाएंगे आपको कि कैंपा की बॉटल एज इट इज़ यही रखी हुई मेरी बहन देख रही है मुझको। तो गाइस, मैनिफेस्टेशन फॉर माई गुड एग्जाम।